Good morning to all. Can you hear me? आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. Okay. So in the last period we have discussed about reference electrode. That is an electrode whose potential is arbitrarily taken as 0 or is exactly known is called as reference electrode. यानी जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको पहले से मालूम है या 0 है उसे हम कहेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड. फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is example of reference electrode and it is primary reference electrode. Second example of reference electrode is calomel electrode. It is secondary reference electrode. Next is indicator electrode. Indicator electrode, the electrode whose potential depends upon concentration of ion present in the solution is known as, that is, indicator electrode. Example, zinc rod in contact with its salt solution ion, that is copper sulfate ion, so it can be represented as zinc solid, single vertical line, then Zn plus 2 aqueous. So up to this in the last period we have that is discussed. Now the next part of this topic is we have to see in detail, that is these two reference electrode. That is, first is standard hydrogen electrode and second is calomel electrode. So we have to see in detail, that is a standard hydrogen electrode. Now first, that is a standard hydrogen electrode. It is a primary reference electrode. It is a primary reference electrode in which pure and dry hydrogen gas. In this electrode, that is pure and dry hydrogen gas at 1 atmosphere. At 1 atmosphere is bubbled over the surface of platinized platinum kept immersed in HCl solution of unit activity and whose potential is arbitrarily fixed as 0 volt at 298 degree Kelvin. So this is the principle of, that is, standard hydrogen electrode. That is, it is a primary reference electrode in which pure and dry hydrogen gas at 1 atmosphere is bubbled. यानी हाइड्रोजन गैस उसमें से पास की जाती है, लेकिन कंडीशन क्या है देखिए, हाइड्रोजन गैस प्योर और खुश्क होना चाहिए, प्योर भी होना चाहिए और ड्राई, दैट इज खुश्क होना चाहिए, दैट इज प्योर एंड ड्राई. सो कंडीशन है यहाँ पर के हाइड्रोजन गैस मस्ट बी प्योर एंड इट शुड बी ड्राई. और प्रेशर देखिए कितना है, प्रेशर भी जो है 1 एटमॉस्फेयर 1 atm is bubbled over the surface of platinized platinum kept immersed in HCl. और उसको हम जो है प्लेटिनाइज प्लेट पर एंटर करके टोटल HCl में डीप कर रहे हैं. और उस HCl की देखिए यूनिट एक्टिविटी, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन, उस HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कितना रहेगा, 1 मोलर. जनरली देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं ये सब, that is the concentration of HCl solution in standard hydrogen electrode is dash dash. So it is 1 molar, remember that.
And also pressure is also asked. Pressure कितना है इसमें? 1 atmosphere. The pressure of standard hydrogen electrode is dash dash. In standard hydrogen electrode, the pressure is 1 atm, that is 1 atmosphere. And उसका potential कितना है? फिक्स है उसका पोटेंशियल, बिकॉज इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको पहले से मालूम है उसे हम कहेंगे दैट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड. और इसका पोटेंशियल आपको मालूम है कितना है? 0 वोल्ट. ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डैश डैश. सो इट इज द 0 वोल्ट. एंड टेम्परेचर आल्सो रिमेंबर दैट इज 298 डिग्री केल्विन. So this is the principle of that is standard hydrogen electrode. Now construction. So here a diagram is given. See already you have that is study this standard hydrogen electrode in 12th standard. So see this consists of that is standard hydrogen electrode consists of a glass jacket. देखिए ये it is like a bell. It is like a bell. ये glass jacket. It consists of a glass jacket at inlet at the top. यानी एक यहाँ पे inlet है for entrance of hydrogen gas. ये देखिए inlet. So standard hydrogen electrode it consists of a glass jacket. ये glass jacket है देखिए ये. This is the glass jacket. ये नीचे तक यहाँ तक ये glass jacket है. This is the ग्लास जैकेट. अब इस ग्लास जैकेट की क्या प्रॉपर्टी है देखिए, इसमें 1 इनलेट है एंड आउटलेट. इनलेट एट द टॉप. टॉप में इनलेट है. इनलेट यानी यहाँ पे किस लिए? इट इज फॉर द एंट्रेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. दिस इज ग्लास जैकेट एंड दिस इज 1 इनलेट एंड इट इज एट द टॉप. ऊपर के हिस्से में क्या है? इनलेट है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इनलेट? किस लिए है ये इनलेट? फॉर एंट्रेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. इसमें से आपको क्या करना है देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन गैस एंटर करना है. सो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द ग्लास जैकेट एंड दिस ग्लास जैकेट एट द टॉप कंटेन इनलेट फॉर entrance of pure and dry hydrogen gas at 1 atm, that is 1 atmosphere. So that is standard hydrogen electrode. It consists of a glass jacket having an inlet at the top for the entrance of hydrogen gas, pure and dry hydrogen gas at 1 atmosphere. Now at the bottom of this glass, small holes are there. Small holes are there. देखिए ये स्मॉल होल नजर आ रहे हैं, बारीक जो है सुराख है इसमें, बारीक होल्स. सो फॉर दैट इज अ रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस. क्योंकि यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस एंटर कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस अगर बहुत ज्यादा हो गई, उसमें एक्सेस ज्यादा हो गया, तो ये जो स्मॉल आउटलेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ होल्स, सो बाय दीज स्मॉल आउटलेट दैट इज हाइड्रोजन गैस इज रिमूव. हाइड्रोजन गैस यहाँ से अगर एक्सेस हो गई, ज्यादा हाइड्रोजन गैस हो गई, तो उसे हाउ किस तरह से निकालेंगे? तो ये ऑटोमेटिकली दैट इज जो आउटलेट्स हैं उस ग्लास जैकेट में, उससे ये निकलते हैं. अंडरस्टैंड? दैट इज स्मॉल होल्स और आउटलेट्स आर देयर एट द बॉटम ऑफ दिस ग्लास जैकेट. फॉर आउटलेट किस लिए हैं? एक्सेस ऑफ दैट इज रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस. ज्यादा हाइड्रोजन गैस ये आउटलेट से स्मॉल होल में से बाहर निकल जाती है, और ये टॉप में इनलेट है, इससे हम हाइड्रोजन गैस एंटर करते हैं. ओके, नाउ इन दिस ग्लास जैकेट ए ग्लास ट्यूब इज देयर. अ ग्लास ट्यूब. दिस इज द ग्लास ट्यूब. दिस इज द ग्लास ट्यूब. ग्लास जैकेट के अंदर क्या है? एक ग्लास ट्यूब है. नाउ कंटेनिंग ए प्लैटिनम वायर. कंटेनिंग अ प्लैटिनम वायर फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट. इस ग्लास ट्यूब में क्या है? एक प्लैटिनम वायर है फॉर दैट इज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट. एंड एट द बॉटम ऑफ दिस ग्लास, एट द बॉटम ऑफ दिस ग्लास ट्यूब मर्क्यूरी इज प्लेस. देखिए यहां तक हमने इस ग्लास ट्यूब की क्या किया है? मर्क्यूरी प्लेस किया है. नाउ ए प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट इज अ फिटेड. देखिए ये प्लैटिनम की प्लेट लिए हैं, और ये प्लेट को क्या किए हैं? इस ग्लास ट्यूब में फिट किए हैं, निचले हिस्से में फिट किए हैं. दिस इज द प्लेट
and this is called as the platinized platinum plate. And this whole jacket is placed in, अब ये जो जैकेट है इसको क्या किया गया है, एक वेसल लिया गया है और उसमें क्या किया गया है, 1 मोलार HCl सॉल्यूशन लिया गया है, इसमें 1 मोलार HCl सॉल्यूशन, और इस ग्लास जैकेट को इस 1 मोलार HCl सॉल्यूशन में डीप किया गया है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस, दैट इज standard hydrogen electrode. Understand, that is very simple. It consists of a glass jacket. पहला point देखिए, it consists of a glass jacket having inlet at the top. Top में inlet है. What is for purpose? किस लिए है inlet? For the entrance of hydrogen gas. And small holes or outlets are there at the bottom. यानी निचले हिस्से में क्या है? Small holes हैं. That is for removal of excess of hydrogen gas. अगर हाइड्रोजन गैस ज्यादा हो गई फर्ज कीजिए तो ये स्मॉल होल से या आउटलेट से जो है रिमूव हो जाती है. और फिर इस ग्लास जैकेट में जो है ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब में जो है प्लैटिनम वायर फिट किया गया है. एट द बॉटम ऑफ दिस ग्लास ट्यूब मर्क्यूरी इज प्लेस्ड एंड platinized platinum plate is fitted at the bottom of this glass tube. And this whole, that is a glass jacket, is deep in 1 molar HCl solution. देखिए H plus है, हमने HCl में से H plus लिए हैं, so 1 molar HCl solution. Understand? So this is the inlet for entrance of hydrogen gas. This is glass jacket. This is glass tube. At the bottom of this glass tube, mercury is placed. In this, platinum wire is there. And platinized platinum plate is fitted in this, that is at the bottom of this glass tube, and electrical contact is made by using, that is this copper wire. And whole glass jacket is deep in 1 molar HCl solution. और इस पूरे ग्लास ट्यूब को जो है, ग्लास जैकेट को 1 मोलार HCl सॉल्यूशन में डीप किया गया है. हाफ जो है क्या करना है, एक वेसल लेना है, उसमें हाफ जो है HCl लेना है 1 मोलार, और उसको ग्लास जैकेट को उसमें डीप करना है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ, दैट इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. So that is again, that is given. It consists of platinum foil coated with platinum black to absorb the hydrogen gas. यानी यहाँ पर देखिए प्लेटिनम प्लेट पे क्या क्यों है यहाँ पे फॉइल इसकी, बिकॉज हाइड्रोजन गैस जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो इस प्लेटिनम प्लेट पे क्या होगी, ये एब्सॉर्ब होगी. A platinum wire is connected to this platinum foil. This platinum wire is sealed in a glass tube and used to make electrical contact with the outer surface. क्या किया गया देखिए, इसमें प्लेटिनम वायर ग्लास ट्यूब में फिट किया गया है फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, A glass jacket having inlet at the top and number of outlet at the bottom. ये तो बताया मैंने, ग्लास जैकेट में जो है टॉप में इनलेट है और बॉटम में क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ आउटलेट, दैट इज स्मॉल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल होल्स एट द बॉटम, surrounds the platinum foil and the glass tube. This whole assembly is placed in a vessel containing solution of 1 molar HCl. यानी इस ग्लास जैकेट को क्या किया गया है, that is 1 molar HCl solution में डीप किया गया है. Understand? So this is the, that is a construction of standard hydrogen electrode. Now next is working. Now when pure and dry hydrogen gas at 1 atm at 1 atmospheric pressure is bubbled through the solution. यानी क्या करना है वर्किंग में, आपको हाइड्रोजन गैस आपको पास करना है. यहां से देखिए हाइड्रोजन गैस पास करना है वर्किंग में, दैट इज, लेकिन कंडीशन क्या है देखिए, हाइड्रोजन गैस शुड बी प्योर एंड ड्राई. हाइड्रोजन गैस शुड बी प्योर एंड इट शुड बी ड्राई. और प्रेशर कितना है, 1 atmosphere. Pressure is 1 atmosphere. When pure and dry hydrogen gas at 1 atmospheric pressure is bubbled through the solution, part of hydrogen gas is absorbed on the surface of platinum black
while the remaining gas escape throughout the holes of the gas. ग्लास जैकेट यानी क्या होगा, जब आप हाइड्रोजन गैस उसमें से पास करेंगे उस ग्लास जैकेट में, तो वो गैस जो है, जो प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट है उस पर कुछ गैस जो है एब्सॉर्ब होगी और रिमेनिंग जो गैस है वो आउटलेट स्मॉल जो होल्स है उससे बाहर निकल जाएगी. नाउ इक्विलिब्रियम इज सेट अप बिटवीन एब्सॉर्ब हाइड्रोजन गैस एंड H+, क्योंकि आपने उस ग्लास जैकेट को किसमें डीप किया है, HCl सॉल्यूशन में, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन. उसमें HCl मींस H+ आयन रहेंगे. सो हाइड्रोजन गैस, जब आप हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस और H+ आयन इन दोनों में क्या होगी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगी. एब्सॉर्ब हाइड्रोजन गैस and H+, there is a equilibrium is established in the solution within 10 minutes. देखिए equilibrium, when equilibrium is obtained after 10 minutes, equilibrium is obtained when that is a platinized platinum plate absorb the hydrogen gas. जब platinized platinum plate हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब करती है, उस वक्त क्या होगा, एब्सॉर्ब हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब की हुई है, और H+ आयन, इन दोनों में आफ्टर 10 मिनट्स इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन. हाइड्रोजन एंटर्स इनटू द सॉल्यूशन एज पॉजिटिव आयन. हाइड्रोजन क्या होगा, सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में एंटर होती है एज पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयन के फॉर्म में क्या होगा, ये अंदर एंटर होगी आयन, लिविंग बिहाइंड इलेक्ट्रॉन ऑन द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. क्या होगा, और वहां पर क्या हाइड्रोजन गैस करेगी, हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी. यानी प्रोसेस ऑफ विच प्रोसेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा प्रोसेस होगा, इसमें दो प्रोसेस तो होते हैं, सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहे, लूज कर रहे, दैट इज द ऑक्सीडेशन. Thus the platinum electrode becomes negatively charged. तो platinum electrode क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, and a potential is developed on it, और उस पर एक स्मॉल अमाउंट का पोटेंशियल डेवलप होगा. दिस पोटेंशियल डेवलप इज वेरी लेस. जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे, वो वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा, बहुत कम है, एंड देयरफॉर इट इज आर्बिट्ररी टेकन एज 0 वोल्ट. तो आमतौर पे हम कितना लेते हैं उसे, 0, क्योंकि नहीं के बराबर डेवलप हो रहा है, इसलिए उसे 0 वोल्ट at 298 डिग्री केल्विन. रिमेंबर दिस 0 वोल्ट बिकॉज एग्जामिनेशन में आता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, तो इट इज 0 वोल्ट. टेम्परेचर 298 डिग्री केल्विन. प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर. एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, दैट इज 1 molar, or that is concentration of HCl is 1 molar. So this is the working. Now reaction. First of all, that is a hydrogen gas, that is they absorb on the platinum plate and they are converted into H+ ion by losing the electron. मैंने बताया क्या, जब इनलेट से हाइड्रोजन गैस आ रही है तो वो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे एब्सॉर्ब होगी, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट पे. देखिए यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से एंटर होने के बाद ये प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट पर क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी, और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन मींस हाइड्रोजन आयन इज कन्वर्टेड इनटू H+ आयन. हाइड्रोजन आयंस आर कन्वर्टेड इनटू H+ आयन by losing the electron, and a process in which electrons are lost is called oxidation. तो जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन. सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा. हाइड्रोजन गैस इट गिव H+ आयन. हाइड्रोजन गैस कौन से आयन में कन्वर्ट हो रही है, H+ आयन में, बाय लिविंग द इलेक्ट्रॉन वहां पे छोड़ रही है, सो +2 इलेक्ट्रॉन. सो electrons are lost in this process, so it is a process of oxidation. Okay, अब क्या रहा वहां पे, देखिए H+ आयन remains. अब ये जो H+ आयन है, अब जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस ने जो है ल्यू किए हैं इलेक्ट्रोड पर, वो क्या करेगा, H+ आयन एक्सेप्ट करेंगे. देखिए H+ आयन accept the electron, H+ ion accept the electron, and it is converted into hydrogen gas. Now again it is converted into hydrogen gas, and here
electrons are gained by H plus ion. Electrons are gained by H plus ion and it is converted into hydrogen gas. So it is the process of reduction. It is the process of reduction. Now representation, देखिए जब भी आपको कोई इलेक्ट्रोड या सेल ई कर रहे हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन आपको देना है. So representation, how it is represented, that is solution कौन सा है यहाँ पर, H, that is HCl है. HCl पूरा नहीं लिखेंगे आप, उसके आयन्स लिखेंगे, पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव HCl में के वे कौन से आयन है, H प्लस आयन. H प्लस आयन और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलार. H प्लस आयन देखिए दैट इज हियर, ये सॉल्यूशन है, इसमें आप 1 मोलार HCl. अब n मोलार HCl के सॉल्यूशन में कौन कौन कांटेक्ट में है, केमिकल प्रोडक्ट कौन, दिस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इज कांटेक्ट और उसके कांटेक्ट में कौन है फिर, प्लैटिनम वायर. देखिए ये सिंगल वर्टिकल लाइन जो बता रहे हैं, मैंने बताया कि उसमें हमने डीप किए हैं, यानी H प्लस आयन किसके कांटेक्ट में है, हाइड्रोजन गैस की, और हाइड्रोजन गैस फिर किसके कांटेक्ट में है, प्लैटिनम वायर के. देखिए दिस इज द H प्लस आयन HCl, ये बीकर में जो आपको नजर आ रहे हैं H प्लस आयन. अभी H प्लस आयन किसके कांटेक्ट में है, विच गैस इज देयर, हाइड्रोजन गैस. ओके, हाइड्रोजन गैस इज देयर एंड दिस हाइड्रोजन गैस किसके कांटेक्ट में है, प्लैटिनम वायर, इनर्ट मेटल. दैट इज द, इस तरह से आप इसे लिखेंगे, दैट इज H प्लस, उसके बाद हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस के बाद क्या है, platinum, inert metal, that is platinum is there, so that we have written here. So this is the representation. Representation भी आपको लिखना है. 10 मार्क का क्वेश्चन अगर थ्योरी का एग्जाम है तो आपको एग्जामिनेशन में 10 मार्क क्वेश्चन का आता है. तो इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए भी 2 मार्क है. H प्लस 1 मोलार है, इसके कांटेक्ट में है हाइड्रोजन गैस, ये G मीन्स गैस, और उसका प्रेशर भी दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर. और फिर हाइड्रोजन गैस किसके कांटेक्ट में है, प्लैटिनम. प्लैटिनम जनरली इस्तेमाल कर, ये भी देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, परसों एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इनर्ट मेटल कौन सी इस्तेमाल होती है. देखने पास क्वेश्चन पेपर भी है यहाँ पर. Which inert metal is used in, that is standard hydrogen electrode. इसमें दिया हुआ है silver, then platinum, palladium, barium. So correct answer is, that is the platinum. ये परसों जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर में देख रहा, हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर बाद में सॉल्व करेंगे, या आप क्वेश्चन पेपर चाहिए ये तो बाद में कॉलेज में आके इसका जेरोस ले सकते हैं आप. अंडरस्टैंड. परसों जो एग्जाम हुआ था उसमें जो रिपीटर बैच थी उसके लिए पेपर 11 के लिए क्वेश्चन पर 25 क्वेश्चन आ गया. हमने जो लिया है अभी तकरीबन उसमें से पूछा गया है. ओके, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन पेपर इन द नेक्स्ट टाइम. ओके, so this is the representation of, that is H plus standard hydrogen electrode. Now next is advantages of standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode के क्या फायदे हैं? As you know, इसका potential कितना है? As what is the potential of standard hydrogen electrode? As कितना है standard hydrogen? Zero, correct. Small potential is developed on the hydrogen electrode. Zero means very small or negligible. So small potential is developed on the hydrogen electrode. Hence it can be taken as zero. Remember that. बहुत मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है. देखिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल एग्जाम भी हुआ तो क्वेश्चन थर्ड ऑब्जेक्टिव के 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत मरतबा पूछा गया है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है. 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 0 वोल्ट, ऐसा ऑप्शन थे. So it can be taken as 0 volt. Now in determining the single electrode potential, using standard hydrogen electrode as a reference electrode, यानी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने के लिए उसको क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके, that is single electrode potential can be calculated. So these are the two advantages of
there is a standard hydrogen electrode. Second is in determining the single electrode potential. सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने के लिए यूजिंग इसका इस्तेमाल करके SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में SHE कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस. द पोटेंशियल ऑफ अननोन, जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम नहीं, अननोन है, विल बी इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल. उसका जो EMF है उसके बराबर होता है. सो दीज आर द टू एडवांटेजेस. एंड नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सेपरेट क्वेश्चन भी आपको आता है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. थ्योरी अगर एग्जाम हो गया तो उसमें पूछा गया है कि या 10 मार्क का क्वेश्चन है, डिटेल में देना है, तो आपको डिसएडवांटेजेस भी इसमें देना है. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. नाउ फर्स्ट इज, अब देखिए प्रेशर कितना है इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में. एस कितना यूज करते हैं प्रेशर, 1 atm, 1 atmosphere. So it is very difficult to maintain the pressure of hydrogen gas at 1 atm. यानी प्रेशर 1 at exactly 1 चाहिए आपको. So during practical it is very difficult to maintain the pressure 1 atmosphere. या तो कम होता है प्रेशर या तो बढ़ जाता है, फिर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है. इसलिए प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर रखना, वे इट इज वेरी डिफिकल्ट है. 1 नहीं रहता ही, या तो 1.2 होता या 1 से कम हो जाता है या 1.5 हो जाता है. अंडरस्टैंड. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर. यानी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखना ये डिफिकल्ट है या दुश्वारी है. नेक्स्ट, any impurity in hydrogen gas disturb the equilibrium set up and poisons of platinum plate. Thus it is difficult to obtain a highly pure gas. देखिए दूसरा डिफिकल्टी या दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि हाइड्रोजन गैस की कंडीशन कैसी है, प्योर एंड ड्राई. हाइड्रोजन गैस कैसी चाहिए आपको, प्योर एंड ड्राई. और प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस मिलना बहुत मुश्किल है. और अगर इम्प्योर हाइड्रोजन गैस होगी तो जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट में, क्या हो सकता है, पॉइजन शुड बी फॉर्म ऑन द प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट. अगर प्योर गैस नहीं है तो क्या होगा, ए पॉइजन शुड बी ऑब्टेन ऑन द प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट. Thus it is difficult to obtain highly pure hydrogen gas. This is the second, that is drawback या disadvantage या difficulties भी बोल सकते हैं आपको. क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, what are the difficulties of standard hydrogen electrode, are disadvantages or demerits. So any impurity in hydrogen gas disturbs the equilibrium set up and poison the platinum plate. Thus it is difficult to obtain a highly pure hydrogen gas. Third one, bubbling of hydrogen gas through HCl solution causes evaporation of water, thereby increasing the concentration of HCl solution. Concentration कितना चाहिए इसमें, 1 मोलार चाहिए. तो अगर 1 मोलार से ज्यादा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl है तो बबल्स तैयार होंगे उसमें. बबलिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस जब दैट इज उसमें आप एंटर करेंगे बाय इनलेट, देन व्हाट विल हैपन, बबलिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस थ्रू HCl सॉल्यूशन, कॉज इवापोरेशन ऑफ वाटर. उससे क्या होगा, वाटर के इवापोरेशन से, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है HCl, वाटर, उसमें जो वाटर है वो इवापोरेट होगा, उसमें क्या होगी, बबलिंग होगी, thereby increasing the concentration of HCl solution. और concentration HCl solution का concentration increase होगा तो bubbling of hydrogen gas takes place through HCl. Next, the impurities present in H2 and HCl poison the platinum. जो platinum वायर है, हाइड्रोजन गैस में जो impurities है, HCl में जो impurities है, वो क्या होगी, poison the platinum and affect the equilibrium at electrode. वो क्या है, प्लैटिनम प्लेट को खराब कर देगी, इस पे जो है पॉइजन फॉर्म होगा, एंड अफेक्ट द इक्विलिब्रियम एट द इलेक्ट्रोड. इट इज नॉट कन्वीनियंट टू असेंबल द apparatus. यानी HCl और
हाइड्रोजन और HCl अगर इम्प्योर होंगे उससे क्या होगा, ए poison should be formed on the platinum plate and affect the equilibrium at the electrode. It is not convenient to assemble the apparatus. So this is about the, that is, these are the advantages of standard hydrogen electrode. So remember, that is, I will repeat in short. So how objective types question are asked in this 5 minutes are remains, so we will discuss on the objective type question. So standard hydrogen electrode is dash dash. It is a primary reference electrode, secondary reference electrode, or any other option आपको examination में आ सकता है. So remember that it is primary reference electrode. उसी तरह कैलोमेल इलेक्ट्रोड, अभी हम कल देखेंगे कैलोमेल इलेक्ट्रोड. आज जिस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, कल हमें देखना है कैलोमेल इलेक्ट्रोड. सेम इन डिटेल अबाउट द कैलोमेल इलेक्ट्रोड. ये भी जिस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसी तरह दैट इज कैलोमेल इलेक्ट्रोड. इट इज आल्सो ए reference electrode, but it is a secondary reference electrode. It is a secondary reference electrode. Remember that objective में आएगा कैलोमेल इलेक्ट्रोड is reference electrode, तो दोनों भी हैं, but standard hydrogen electrode is a primary reference electrode and कैलोमेल electrode that is secondary reference electrode. Next, what is the pressure of स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 1 2 3 0 atmosphere, so it should be 1 atmosphere. The concentration of HCl in standard hydrogen solution is dash dash. It is unit activity, that is the 1 molar. The potential of standard hydrogen electrode, that is the 0. देखिए ये मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपको, 1 या 2 क्वेश्चन इस पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे. तो मैं जो आपको बता रहा हूं उसी में से एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. द टेम्परेचर ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डैश डैश, सो इट इज 298 डिग्री केल्विन. So construction we have seen, then working potential is 0, then these are the reaction, representation, advantages, and that is the disadvantages. So this is in detail about the standard hydrogen electrode. In the next period we see, that is construction, working, cell reaction, and representation of calomel electrode. Okay, so this is the first type of reference electrode, primary reference electrode. In the next period we see secondary reference electrode, that is the calomel electrode. Okay, so if you have any difficulty, ask, otherwise we will stop here. कोई difficulty है तो chat box में लिखिए, otherwise we will stop. Okay, we will stop here.